شہر میں گیس بحران آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 20 گھنٹے سے تجاوز کر گیا۔ سوئی گیس کمپنی کے سسٹم پر بجلی قلت سے لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ریکارڈ۔ کمپنی نے صبح 6:30 سے لے کر 9 بجے تک گیس فراہمی کا شیڈول نافذ العمل کر دیا۔ دوپہر کے اوقات میں انتہائی کم پریشر پر صارفین کو گیس دی جائے گی۔ کمپنی نے ناشتہ اور شام کو گیس فراہمی کا دورانیہ مزید کم کر دیا۔ صارفین نے کمپریسر چلانا شروع کر دیے۔ سوئی نادران گیس کمپنی کے سسٹم پر گیس کی قلت سے لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کی وجہ سے صبح اور شام کو گیس فراہمی کا دورانیہ مزید کم کر دیا گیا ہے۔ کمپنی نے صبح 6:30 سے لے کر 9 بجے تک گیس فراہمی کا شیڈول نافذ کیا ہے، جبکہ شام کو بھی 6 بجے سے لے کر 9 بجے تک گیس فراہم کی جا سکے گی۔ صرف 6 گھنٹے گیس ملے گی اور میں کہتا ہوں گیس بالکل بند ہی کر دو۔ عوام ایسے مر رہے ہیں ایل پی جی میں، وہ کوئی کنٹرول نہیں ہے اس کا۔ کھان پینے کے حوالے میں گزارا دیکھیں تو کیا گزارا ہو رہا ہے۔ جب گیس ہی نہیں ہوگی تو نہ ناشتہ پکے گا، نہ دوپہر کو روٹی پکے گی، نہ شام کو پکے گی۔ بل اتنے بڑھ کے آ رہے ہیں کہ ہماری سوچ سے بھی باہر ہے۔ دوپہر کے اوقات میں انتہائی کم پریشر پر صارفین کو گیس دی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے صارفین نے کمپریسر کا استعمال بڑھا دیا ہے۔ کمپریسر نہ صرف گھر والوں کے لیے خطرناک ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سسٹم کے لیے بھی نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ کسی بھی علاقے میں کمپریسر چلنے سے عام صارفین تک گیس پہنچنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ مختلف علاقوں میں گیس غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 20 گھنٹے سے تجاوز کر گیا ہے۔ گیس کی عدم فراہمی کی وجہ سے صارفین کو کھانا پکانے میں دشواری کا سامنا ہے۔ صارفین کا کہنا ہے کہ گیس کی عدم فراہمی پر کھانا نہیں پکایا جا رہا، تاہم کمپنی نے بھاری بھرکم بلز بھجوا دیے ہیں۔ گیس نہ گرمیوں نہ سردیوں میں بھی نہیں آئی، ہم بل دے دے کے تھک گئے ہیں، اور باہر سے ایل پی جی ڈلوانے جاتے ہیں وہ 500 روپے کی کلو دے رہے ہیں اگلے، وہ بھی نرا پانی ہے، گیس نہیں ہے پوری۔ وہ گیس اتنی مہنگی ہو گئی ہے، ہماری پہنچ سے باہر ہو گئی ہے۔ بل وہی پورا آ رہا ہے لیکن گیس نہیں آ رہی۔ اب 550 روپے کلو گیس ہو گئی ہے۔ گیس پوری کریں، بل پورے کریں یا کھانا پورا کریں۔ دکان کا کرایہ بڑی مشکل کور کرتے ہیں، بل بہت زیادہ آ رہے ہیں، گیس بالکل نہیں آ رہی۔ جب گھر فون کرتے ہیں پتہ چلتا ہے گیس نہیں آ رہی، روٹی بازار سے لیتے آؤ۔ صارفین کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت گھریلو صارفین کے لیے تو گیس کی فراہمی یقینی بنائے، جبکہ شہر میں ایل پی جی کی قیمتوں میں من مانا اضافہ بھی رکوانے کے لیے اقدامات کریں۔ شہر میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع۔ لیسکو کے سسٹم پر بجلی کا شارٹ فال 1000 میگا واٹ ہو گیا۔ 511 kV فیڈرز کو بند کر کے لوڈ شیڈنگ ہونے لگی۔ گریڈ سٹیشنز کو بند کر کے بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہونے لگی۔ لیسکو کے سسٹم پر ڈیمانڈ 3000 میگا واٹ ریکارڈ کی گئی۔ این پی سی سی فراہمی 2000 میگا واٹ ہونے لگی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، شہر میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لیسکو کے سسٹم پر بجلی کا شارٹ فال 1000 میگا واٹ ہو گیا۔ 511 kV فیڈرز کو بند کر کے لوڈ شیڈنگ ہونے لگی۔ گریڈ سٹیشنز کو بند کر کے بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہونے لگی ہے۔ لیسکو کے سسٹم پر ڈیمانڈ 3000 میگا واٹ ریکارڈ کی گئی۔ این پی سی سی فراہمی 2000 میگا واٹ ہونے لگی ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ دودھ فروش اور ڈیری فارمرز آمنے سامنے آ گئے۔ دودھ فروش یونین نے مہنگا دودھ خریدنے سے انکار کر دیا، قیمتوں میں اسود اضافہ مسترد کر دیا۔ اعلان واپس نہ لیا گیا تو سپلائی بند کر دیں گے، دودھ فروش یونین نے اعلان کر دیا۔ ڈیری فارمرز نے 16 مئی سے دودھ کی قیمتوں میں 25 روپے لیٹر اضافے کا اعلان کیا تھا۔ دودھ فروش یونین نے دودھ کی قیمتوں میں از خود اضافے کو مسترد کر دیا ہے۔ دودھ فروش یونین کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ دودھ کی قیمت میں مسلسل اضافہ ناقابل قبول ہے، حکومت سرکاری نرخ نامے پر عمل کروائے۔ دودھ فروشوں کا کہنا ہے کہ قیمت میں اضافے کا اعلان واپس نہ لیا گیا تو سپلائی بند کر دیں گے۔ ڈیری فارمز نے 16 مئی سے دودھ کی قیمتوں میں 25 روپے لیٹر اضافے کا اعلان کیا ہے۔ بھینس کا دودھ 245 جبکہ گائے کا دودھ 195 روپے ہول سیل فی لیٹر ہو جائے گا۔ نئے اضافے سے پرچون کی قیمت 270 روپے فی لیٹر تک ہو جائے گی۔ دودھ کی سرکاری قیمت 170 روپے فی لیٹر ہے۔ قیمت بڑھنے سے طلب کم ہو جاتی ہے، جس کا نقصان دودھ فروشوں کو اٹھانا پڑتا ہے۔ لاہور میں بادلوں کا ایک اور سپیل برسنے کو تیار۔ شہر میں 16 سے 18 اپریل تک بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کی تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ پنجاب کے مختلف شہروں لاہور، راولپنڈی، گجرانوالہ، فیصل آباد اور سرگودا میں 16 سے 18 اپریل کے دوران بارشوں کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ جنوبی پنجاب میں بھی تیز ہواؤں اور بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ہواؤں کی رفتار 10 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 16% ریکارڈ کیا گیا۔ ماہرین کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر کا زیادہ سے
ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि कम से कम 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। शहर में मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 66 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी नहीं हो सकेगी। दुल्हा और दुल्हन की उम्र 18 साल होना लाजमी करार। निकाह खां को कम से कम 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। कम उम्र बच्चे या बच्ची से शादी करने वाले को 3 साल कैद और 5 लाख जुर्माना होगा। दूसरे सूबे में ले जाकर शादी करने वाले को 7 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। शादी को ज्यादती के जुमरे में शुमार किया जाएगा। कायमा कमेटी में ऑर्डिनेंस मंजूर। कायमा कमेटी बराए लोकल गवर्नमेंट के इजलास की सदारत पीर अशरफ रसूल ने की, जबकि गवर्नर सरदार सलीम हैदर पहले ही इस ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे चुके हैं। ऑर्डिनेंस के मुताबिक पंजाब में 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है और निकाह के वक्त दुल्हा और दुल्हन दोनों की उम्र कम से कम 18 साल होना लाजमी करार दी गई है। कानून के तहत कम उम्री की शादी को बाकायदा काबिल सजा जुर्म करार दिया गया है, जिस पर मुख्तलिफ सजाएं मुकर्रर की गई हैं। कम उम्री का निकाह रजिस्टर्ड करने वाले निकाह खां और रजिस्ट्रार को कम से कम 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना, कम उम्र बच्चे या बच्ची से शादी करने वाले को 3 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। 18 साल से कम उम्र शादी को ज्यादती के जुमरे में शामिल करते हुए 7 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। कम उम्र बच्चों को दूसरे सूबे ले जाकर शादी करने वाले पर भी 7 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। सरपरस्त या कोई भी फर्द अगर कम उम्री की शादी करवाने की कोशिश करे तो 2 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। ऑर्डिनेंस में वाज़ेह किया गया है कि निकाह रजिस्ट्रार, वालिदैन और दीगर मुतलका अफराद भी लापरवाही की सूरत में कानून की जद में आएंगे। कमेटी की मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस को बाकायदा मंजूरी के लिए ऐवान में पेश किया जाएगा, जहाँ से मंजूरी के बाद ये कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा। नए तरक्याती बजट में बड़े पैमाने पर अदोबदल। सोशल सेक्टर के बजट में 18.5 अरब की कटौती। बजट 487 अरब 50 करोड़ से कम करके 469 अरब 4 करोड़ 80 लाख कर दिया गया। कटौती तालीम और सेहत के बजट में की गई। प्रोडक्शन सेक्टर के लिए 144 अरब 80 करोड़ दिए गए। दीगर सेक्टर में 34 अरब की बड़ी कटौती। नए इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस के बजट में इजाफा किया गया। पंजाब के तरक्याती बजट में मुख्तलिफ शोबों के फंड्स में नुमाया कटौतियाँ। जराये के मुताबिक सोशल सेक्टर का बजट 487 अरब 50 करोड़ रुपए से कम करके 469 अरब 4 करोड़ 80 लाख रुपए कर दिया गया है, जिसमें तालीम और सेहत समेत अहम शोबों में तकरीबन 18 अरब रुपए की कमी शामिल है। इसी तरह प्रोडक्शन सेक्टर का बजट 174 अरब 20 करोड़ से घटाकर 144 अरब 80 करोड़ 70 लाख रुपए कर दिया गया, जबकि सर्विसेज सेक्टर 106 अरब 60 करोड़ से कम होकर 99 अरब 8 करोड़ 50 लाख रुपए रह गया। दीगर सेक्टर्स में भी बड़ी कटौती करते हुए बजट 102 अरब 91 करोड़ से कम करके 68 अरब 81 करोड़ 90 लाख रुपए कर दिया गया, जिसमें तकरीबन 34 अरब रुपए की कमी शामिल है। दूसरी जानिब हुकूमत ने इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस के शोबों खुसूसन रोड सेक्टर के लिए फंड्स में इजाफा किया है ताकि तरक्याती मंसूबों की रफ्तार बरकरार रखी जा सके। शहरी और देही इलाकों में टैक्स का फर्क खत्म। काबिल तफवीज़ दस्तावेज़ पर इजाफी टैक्स लागू नहीं होगा। प्रॉपर्टी सरमायाकारी के लिए नया आसान और शफाफ निज़ाम मुतारिफ। रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ी इस्लाहात का ऐलान। काबिल तफवीज़ दस्तावेज़ पर 12 माह तक सिर्फ 1% स्टैम्प ड्यूटी आए। स्टैम्प ऑर्डिनेंस 2026 नाफिज। काबिल तफवीज़ दस्तावेज़ को कानूनी हैसियत दे दी गई। कम स्टाम्प ड्यूटी और ई रजिस्ट्रेशन से फ्रॉड की रोकथाम मुमकिन हो सकेगी। पंजाब हुकूमत ने रियल स्टेट सेक्टर में बड़ी इस्लाहात का ऐलान करते हुए स्टाम्प ऑर्डिनेंस 2026 नाफिज कर दिया, जिसके तहत काबिल तफवीज दस्तावेज को कानूनी हैसियत दे दी गई। डायरेक्टर जनरल पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी इकरामुल हक के मुताबिक प्रॉपर्टी सरमायाकारी के लिए एक नया आसान और शफाफ निज़ाम मुतारिफ कराया गया है, जिसके तहत काबिल तफवीज दस्तावेज पर 12 माह तक सिर्फ 1% स्टाम्प ड्यूटी आयद होगी, जबकि इस पर कोई इजाफी टैक्स लागू नहीं होगा। शहरी और देही इलाकों में टैक्स का फर्क भी खत्म कर दिया गया। ज़राई जमीन की स्टाम्प ड्यूटी में नुमाया कमी की गई, जबकि गैर रस्मी बयाना और फायर ट्रेडिंग की हौसला शिकनी की जाएगी। मजीद बरआं ई रजिस्ट्रेशन के जरिए प्रॉपर्टी लेन देन को महफूज बनाया गया है, जिससे फ्रॉड के इम्कानात में कमी मुतवक्के है। काबिल तफवीज दस्तावेज के जरिए प्रॉपर्टी हुकूक किसी और को मुंतकिल करना भी मुमकिन नहीं होगा। हुकूमती इक़दाम से सरमायाकारी में इजाफा और मईशत को फरोग मिलने की तवक्को है। पंजाब हुकूमत का सूबे भर में सिक्योरिटी निज़ाम मजबूत बनाने का बड़ा फैसला। गली मोहल्लों की निगरानी के लिए यूनियन कौंसिल लेवल तक CCTV कैमरे लगाने का मंसूबा। पंजाब की तमाम यूनियन कौंसिल्स में सेफ सिटी कैमरों की तनसीब होगी। सूबा भर की तकरीबन 7000 यूनियन कौंसिल्स को मंसूबे में शामिल करने का प्लान।
सेफ सिटी मंसूबे के लिए 5 अरब रुपए दरकार होंगे। कैमरों की तनसीब के लिए वर्किंग पेपर्स भी तैयार, समरी वज़ीर आला को अरसाल कर दी गई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने मंसूबे की मंजूरी के लिए समरी भिजवा दी। वज़ीर आला की हिदायत पर यूनियन कौंसिल सतह तक मॉनिटरिंग का निज़ाम कायम किया जाएगा। हर गली और मोहल्ले की निगरानी यकीनी बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी। पंजाब में सेफ सिटी सिस्टम को निचली सतह तक तौसीह दी जाएगी। पंजाब हुकूमत का सूबे भर में सिक्योरिटी निज़ाम मजबूत बनाने का बड़ा फैसला। गली मोहल्लों की निगरानी के लिए यूनियन कौंसिल लेवल तक CCTV कैमरे लगाने का मंसूबा। पंजाब की तमाम यूनियन कौंसिल में सेफ सिटी कैमरों की तनसीब होगी। शहर में ट्रैफिक के बहाव को मजीद बेहतर बनाने के लिए इकदाम। सिटी ट्रैफिक पुलिस को गश्त के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां मिलेंगी। हुकूमत ने सिटी ट्रैफिक पुलिस को 50 इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी। सिटी ट्रैफिक पुलिस के ऑपरेशनल आलात के साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियों के नए बेड़े की शमूलियत से ऑपरेशनल कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। शहर में फ्लीट ऑपरेशंस और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए ट्रैफिक पुलिस की मौजूदा गाड़ियां नाकाफी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शहर में रजिस्टर्ड गाड़ियों की तादाद 7.3 मिलियन से तजावुज कर चुकी है। सिटी ट्रैफिक पुलिस की बोसीदा और नाकारा गाड़ियां मुअस्सर गश्त के लिए नाकाफी हैं। ऑपरेशनल आलात के साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियों के नए बेड़े की शमूलियत से ऑपरेशनल कारकर्दगी में नुमाया इजाफा होगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियां मिलने से पेट्रोल की खपत कम होगी। ट्रैफिक पुलिस के रिस्पांस में बेहतरी आएगी और टेक्नोलॉजी पर मबनी जदीद पॉलिसिंग को फरोग मिलेगा, जबकि माहौलियाती तहफ्फुज और स्मार्ट अर्बन मोबिलिटी में ट्रैफिक पुलिस का भी हिस्सा डलेगा। और यहाँ आपको बताएं कि सरकारी स्कूल्स हुकाम की लापरवाही या गफलत, 17 लाख तलबा का बेफॉर्म नंबर गलत या गायब होने का इंकशाफ। महकमा तालीम पंजाब का तलबा का मुकम्मल रिकॉर्ड डिजिटल करने का हुक्म। तमाम तलबा को यूनिक स्टूडेंट ID देने का अमल तेज़ करने का फैसला। स्कूल सरबराहान को बेफॉर्म तस्दीक के बाद दुरुस्त अंदराज यकीनी बनाने का हुक्म। सरकारी स्कूल्स हुकाम की लापरवाही या गफलत, 17 लाख तलबा का बेफॉर्म नंबर गलत या गायब होने का इंकशाफ हुआ। महकमा तालीम पंजाब का तलबा का मुकम्मल रिकॉर्ड डिजिटल करने का हुक्म। तमाम तलबा को यूनिक स्टूडेंट ID देने का अमल तेज़ करने का फैसला। स्कूल सरबराहान को बेफॉर्म तस्दीक के बाद दुरुस्त अंदराज यकीनी बनाने का हुक्म। सरकारी स्कूलों के फंड्स ताखीर का शिकार हो गए। एडिशनल क्लासरूम्स की तामीर का मंसूबा भी लटक गया। लाहौर में कितने क्लासरूम्स बनाए जाने थे, जानते हैं इस रिपोर्ट में। स्कूलों को इब्तिदाई किस्त जारी होने के बाद मजीद फंड्स फराहम न किए जा सके। फंड्स की बंदिश के बाइस कई स्कूलों में तामीराती काम रुक गया। लाहौर में भी 250 से जायद क्लास रूम्स की तामीर का आगाज किया गया था। फंड्स की बंदिश से लाहौर में मुतादिद स्कूलों में दीवारें, छतें और बुनियादी ढांचा मुकम्मल न हो सका। माली साल खत्म होने में 1 माह से जायद अरसा बाकी है, मगर फंड्स ताहाल जारी नहीं हुए। स्कूल सरबराहान के मुताबिक मंसूबे में ताखीर से तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। पंजाब टीचर्स यूनियन ने फंड्स की फराहमी और मंसूबे की बरवक्त तकमील का मुतालिबा किया है। दिन भर होने वाली अदालती कार्रवाइयों से मुतालिक जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोर्ट में पतंगबाजी के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने DC लाहौर मोहम्मद अली एजाज और SSP ऑपरेशंस तौकीर की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। अदालत ने मुफस्सल रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। बाउंस चेक केस में हाई कोर्ट ने SP इन्वेस्टिगेशन सदर की अदम पेशी पर बरहमी का इजहार किया। अदालत ने DIG इन्वेस्टिगेशन ज़िशान रजा को कल तलब कर लिया। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी ने मुलजिम जमील अरशद की अबूरी दरखास्त जमानत पर समाअत की। अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए हुक्म दिया कि DIG इन्वेस्टिगेशन ज़िशान रजा कल पेश होकर वजाहत करें। आवारा कुत्तों के हमलों से बचाव के लिए केस की समाअत। हाई कोर्ट ने एनिमल बर्थ कंट्रोल पॉलिसी पर अमल दरामद पर केस निपटा दिया। जस्टिस हसन नवाज मखदूम ने समाअत की, जिसमें दरखास्त गुजार मजीद गौरी समेत दीगर फरीकैन अपने वकील के हमरा पेश हुए। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आवारा कुत्तों के हमलों को रोकने के लिए मौसर और अमली इक़दामात यकीनी बनाए जाएं। अदालत ने पॉलिसी पर अमल दरामद से मुतालिक रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद दरखास्त निपटा दी। बिजली बिलों में स्लैब टैरिफ का तरीक़ाकार चैलेंज कर दिया गया। हाई कोर्ट के जस्टिस खालिद इसहाक ने नेपरा को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर दिया। जस्टिस खालिद इसहाक ने सालिया खातून इशफाक कामरान की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त में नेपरा समेत दीगर मुतलका हुक्काम को फरीक बनाया गया है। टिकटॉकर रजब भट्ट समेत दीगर की लड़की से ज्यादती का केस सेशन कोर्ट ने मुल्जिमान को फर्द जुर्म के लिए तलब कर लिया। एडिशनल सेशन जज यासिर इरफात ने समाअत की तो रजब भट्ट अपने वकील राना मारूफ के साथ पेश हुए। अदालत ने रजब भट्ट, जवाद अली जहांगीर और अब्दुल रहमान को मुकदमे की नकूल तकसीम की और रजब भट्ट समेत दीगर मुल्जिमों को 22 अप्रैल को तलब कर लिया। बाप बच्चे का खर्चा ना देगा तो मुलाकात का हकदार भी नहीं होगा।
गार्डियन अदालत में बच्चे के खर्चे का एक ऐसा केस पेश जिसमें अदालत ने बच्चे का खर्चा ना देने पर बाप के वारंट जारी कर दिए। दादी मुलाकात के लिए अदालत पहुंच गई, बोली पोते से मुलाकात उसका हक है। गार्डियन अदालत में बच्चे के खर्चे में दोनों फरीकैन के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। गार्डियन अदालत ने दोनों फरीकैन को मजीद बहस के लिए 14 अप्रैल को तलब कर लिया। सेंट्रल जेल में बायोमेट्रिक का मामला लटक गया। कोट लखपत जेल में नादरा का बायोमेट्रिक सिस्टम 2 रोज से खराब, मुल्जिमान का बायोमेट्रिक करने में शदीद दुश्वारी। जेल सुपरिटेंडेंट ने सेशन जज और आईजी जेल खाना जात को आगाह कर दिया। लेटर में बताया गया है कि नादरा कोई सुनवाई नहीं कर रहा, जिससे मुल्जिमान की बायोमेट्रिक नहीं भिजवाई जा रही। पंजाब हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी पर मबनी अवामी सर्वे रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने जारी की है, जिसमें हुकूमत की मजमूई कारकर्दगी पर अवामी इत्मीनान में नुमाया इजाफा जाहिर किया गया है। सर्वे के मुताबिक 69% अफराद ने मरियम नवाज की क़यादत पर एतमाद और इत्मीनान का इजहार किया है और पंजाब की तरक्की को दुरुस्त समत में पेशरफ्त करार दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक 32% ने वज़ीर आला की कारकर्दगी को आउटस्टैंडिंग, जबकि 31% ने गुड करार दिया। सर्वे में ये भी सामने आया है कि नौजवानों की अक्सरियत वज़ीर आला की कारकर्दगी से मुतमईन है, जबकि पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 42% अवामी मकबूलियत हासिल हुई। रिपोर्ट के मुताबिक 56% अफराद ने तरक्याती मंसूबों के आगाज के बाद वज़ीर आला की मकबूलियत में इजाफा तस्लीम किया, जबकि 55% ने कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देने के अज़्म का इजहार किया। अवामी राय में सुथरा पंजाब प्रोग्राम 33% के साथ सबसे नुमाया रहा, जबकि खवातीन वेलफेयर और प्रोटेक्शन 30%, पब्लिक ट्रांसपोर्ट 29% और तालीम 27% के साथ अहम शोबे करार पाए। अमन व अमान को 26%, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर को 25% अफराद ने बेहतर करार दिया। सर्वे के मुताबिक मजमूई तौर पर 65% अफराद ने पंजाब को तरक्की की दुरुस्त समत पर गामजन करार दिया। सर्वे में 56% शहरियों ने सैनिटेशन और बल्दियाती सर्विसेज पर इत्मीनान का इजहार किया। पाकिस्तान में पहली बार सरकारी सतह पर बाकायदा मैयत मुंतकिल सर्विस का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने बाकायदा सर्विस का आगाज़ कर दिया। इब्तदाई मरहले में यह सर्विस लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान के सरकारी अस्पतालों से मैयत को तकरीम के साथ बिला मुआवजा घर मुंतकिल करने के लिए शुरू की गई है, जो जून तक इसका दायरा कार बतदरीज पंजाब की हर तहसील तक बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आला ने लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान के लिए मुख्तलिफ गाड़ियों की चाबियाँ हवाले की। इस मौके पर उन्होंने एहलकारों को हिदायत की कि वो रज़ाए इलाही और अवामी खिदमत के जज्बे से काम करें और सोगवार ख़ानदानों को दिलासा और काउंसलिंग भी फराम करें। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने इस इक़दाम को काबिल तहसीन करार देते हुए कहा कि इस सर्विस के ज़रिए आवाम को मुश्किल घड़ी में सहारा देने का एहसास दिलाया जाएगा। डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर ने बताया कि मैयत मुंतकिल सर्विस हासिल करने के लिए रेस्क्यू 2222 पर कॉल की जा सकती है, जबकि हर सरकारी अस्पताल में खुसूसी डेस्क कायम किया जाएगा। महकमे तामीरात व मवासलात का इजलास। सूबाई वज़ीर मलिक सुहेब अहमद भरत ने सदारत की। इजलास में महकमे की मजमूई कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में राजा जहांगीर अनवर, एडिशनल सेक्रेटरीज, चीफ इंजीनियर्स और दीगर अफसरान ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर को वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के तरक्याती प्रोग्राम्स पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में फैसलाबाद, चिन्योट रोड, मुल्तान, बिहाड़ी रोड, लोकल रोड पर प्रोग्राम, वाहगा रोड और सड़की बहाल, पंजाब खुशहाल प्रोग्राम समेत मुख्तलिफ मनसूबों पर पेशरफ से आगाह किया। सूबाई वज़ीर मलिक सुहेब अहमद भरत ने तमाम मनसूबों को बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत देते हुए कहा कि तरक्याती स्कीमों पर काम की रफ्तार को मज़ीद तेज़ किया जाए। गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग कॉलेज गुजरपुरा में एडवांस मेडिकल ट्रेनिंग लैब का इफ्तिताह। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नसीर ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर सूबाई वज़ीर ने लैब का दौरा भी किया और इनरोल होने वाले तलबा व तलबात ने भी लैब का क़याम बेहतरीन इक़दाम करार दिया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग कॉलेज गुज्जरपुरा में एडवांस मेडिकल ट्रेनिंग लैब का इफ्तिताह किया। चेयरमैन टेफ्टा ब्रिगेडियर रिटायर्ड साजिद खोखर, चेयरमैन सीएम टास्क फोर्स अदनान अफजल चट्ठा, सेक्रेटरी STED नादर चट्ठा, पार्लिमानी सेक्रेटरी सलमा सादिया, COO टेफ्टा फैसल फरीद, DG OPS अमीर अजीज, हुनर फाउंडेशन से कुर्रतुलैन, TT फाउंडेशन से राशिद मिनहास भी मौजूद थे। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर नौजवानों को हुनरमंद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 4 माह की ट्रेनिंग के बाद उनका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा अच्छा है और मैं समझता हूँ कि ये बच्चे फ्यूचर में अच्छे हेल्थ केयर असिस्टेंट साबित हो सकते हैं।
क्योंकि आजकल जो मार्केट है, आपको पता है कि हर दूसरे चौथे शख्स को हेल्थ केयर प्रोवाइडर की ज़रूरत पड़ती है। सम टाइम अल्लाह माफ़ करे, आपके घर में आपके बुज़ुर्ग जो हैं वो बीमार हो जाते हैं और उनके लिए कोई असिस्टेंट रिक्वायर्ड होता है, तो मार्केट में जब आप पता करते हैं तो आपको जो प्रोफेशनल हेल्थ केयर असिस्टेंट है वो नहीं मिलते। चेयरमैन टेप्टा ने कहा कि इस लैब के साए में 6 माह का कोर्स करवाया जाएगा। 6 माह के कोर्स में 4 माह इन कैंपस और 2 माह अस्पताल में होंगे। केयरिंग हैंड्स के नाम से ये एक नई लैब्स का इफ्तिताह किया है और यहाँ पर हेल्थ केयर असिस्टेंट का कोर्स हम 6 माह का कोर्स करवाएंगे और 4 महीने की क्लासेस में ट्रेनिंग होगी, 2 मंथ्स जो है वो हॉस्पिटल में इनकी ट्रेनिंग होगी। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अचीवमेंट है टेप्टा के लिए, बिकॉज़ हमारे पोर्टफोलियो पे ऊपर हेल्थ केयर के हवाले से कोई कोर्सेज नहीं थे। कोर्स में इनरोल होने वाले तलबा और तालबात ने लैब का क़याम बेहतरीन इकदाम करार दिया। इस ट्रेनिंग से हमने पेशेंट की जितनी भी केयर्स होती हैं, मतलब हेड टू टो सारी केयर्स के बारे में सीखा है, जिसमें ऑरल, डेंचर केयर, इस तरह की जितनी भी केयर्स होती हैं उसके बारे में सीखा है। इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस, और सबसे पहले तो ये बहुत नोबल और इम्पोर्टेंट प्रोफेशन है हमारे प्रोफेशनलिज्म में, जिसमें हम जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सोशलाइज होते हैं बाकी पेशेंट्स की तरफ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनको जो है बहुत ज़्यादा केयर प्रोवाइड करते हैं, उनके वाइटल साइन मॉनिटरिंग करना। मुझे बहुत अच्छे से सिखाया गया। जब मैं यहाँ पे शुरू में आई थी मुझे बिल्कुल भी इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी हद तक इसके बारे में मालूमात हुई हैं और मैं जब यहाँ से सीखती हूँ और मैं घर जाके भी बताती हूँ और बाकी सबको भी इसके मुतालिक जो है इन्फॉर्मेशन करती हूँ। लैब से कोर्स करने वाले उम्मीदवार मुल्की और गैर मुल्की मुलाजमतों के म्यार पर पूरा उतर सकेंगे। कैमरामैन आगा जैन के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत रूडा प्रोजेक्ट्स पर अहम इजलास। मानसून से कबल तरक्याती कामों का जायज़ा, फील्ड विजिट का फैसला, दरिया रावी के साथ मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। इदारों को मुश्तरका इक़दाम की हिदायत भी की गई, जबकि थीम पार्क की तैयारी तेज़ करने का हुक्म देते हुए मुतल्लिका महकमों को मुतारिक रहने की ताकीद की। कमिश्नर लाहौर मरियम खान की ज़ेर सदारत रूडा के तरक्याती मनसूबों से मुतालिक आम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें DC लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज और CEO रूडा इमरान अमीन समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में आइंदा मानसून सीज़न के पेश नज़र रूडा के जारी प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ का तफसीली जायज़ा लिया गया, जबकि CEO रूडा ने दरिया रावी के साथ जारी तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर ने हिदायत की कि रूडा ज़िला इंतज़ामिया लाहौर और शेखुपुरा बाहमी इश्तराक से ज़रूरी इक़दाम मुकम्मल करें और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए पेशगी कामों का जायज़ा लेने के लिए इसी हफ्ते से मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए जाएँ। उन्होंने थीम पार्क की बरवक्त तैयारी पर भी जोर देते हुए कहा कि इरीगेशन, फॉरेस्ट, वासा और ज़िला इंतज़ामिया पर मुश्तमिल मुश्तरका टीम इसी हफ्ते दरिया रावी के थीम पार्क का दौरा करे। DC ऑफिस के कंट्रोल की कारकर्दगी का जायज़ा इजलास। सदारत डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने की। ACHR ने ब्रीफिंग में बताया कि कंट्रोल रूम 3 शिफ्टों में 24 घंटे फाल है और शिकायत का रियल टाइम अजाना किया जा रहा है। इजलास पे ADC जनरल, ACHR, CEO हेल्थ और मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स शरीक हुए। ACHR ने ब्रीफिंग में बताया कि कंट्रोल रूम में 3 शिफ्टों में 24 घंटे ऑपरेशनल है और तमाम बड़े स्टेक होल्डर्स के नुमाइंदे ड्यूटी पर मौजूद रहते हैं। हर बड़े इवेंट पर खुसूसी ड्यूटियाँ तफवीज़ की जाती हैं ताकि अवामी सहूलत में तसलसल बरकरार रहे। तमाम मसाइल और शिकायत को रियल टाइम में एड्रेस किया जाता है, जबकि जिन शिकायत में वक्त दरकार होता है उनकी मौसर फॉलोअप के ज़रिए पेंडेंसी को कवर किया जाता है। IG पंजाब अब्दुल करीम की पुलिस मुलाजमीन और अहल खाना से मुलाकात। पुलिस मुलाजमीन फैमिलीज़ के मसाइल सुने, फौरी रिलीफ के लिए अहकाम जारी किए। मरहूम इंस्पेक्टर गुलाम इब्न अली की बेवा की बेटे की भर्ती दरख्वास्त पर एडिशनल IG को ज़ेर गौर लाने की हिदायत की। मरहूम कांस्टेबल मुजाहिद अब्बास के बेटे की भर्ती की दरख्वास्त पर DIG वेलफेयर एंड फाइनेंस को रिलीफ फराहमी की हिदायत दी। हेड कांस्टेबल मोहम्मद इरफान की ट्रांसफ़र की दरख्वास्त पर एडिशनल IG को, जबकि 8 सीनियर ट्रैफिक वार्डन्स की प्रमोशन की दरख्वास्त पर DIG हेडक्वार्टर्स को रिलीफ की हिदायत की। शहीद कांस्टेबल तनवीर अब्बास के भाई की भर्ती की दरख्वास्त पर एडिशनल IG को ज़ेर गौर लाने की हिदायत की। दूसरी जानिब स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार अयाज सादिक और रुकन कौमी असम्बली हाफिज़ मियाँ मोहम्मद नुमान की PTI रहनुमा मियाँ असलम इकबाल की रहाइश का आमद। दोनों रहनुमाओं ने मियाँ असलम इकबाल की वालिदा के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। समनाबाद में सरदार अयाज सादिक ने मरहुमा के लिए मग़फ़िरत और अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। उन्होंने मियाँ असलम इकबाल के भाइयों जावेद इकबाल, अफजल इकबाल और अमजद इकबाल से भी ताज़ियत किया।
حافظ میاں محمد نعمان نے کہا کہ وہ دکھ کی اس گھڑی میں خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ تعزیت کے موقع پر سیاسی سماجی شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور دن بھر آمد کا سلسلہ جاری رہا۔ اس موقع پر میاں اسلم اقبال نے تعزیت کے لیے آنے والے تمام افراد کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ کے مشیر علی ڈار سے چیئرمین نیسلے سید یاور علی کے وفد کے ہمراہ ملاقات۔ وفد نے آفس آف AI اینڈ اسپیشل انیشیٹوز کا دورہ کیا۔ وفد کی جانب سے گزشتہ 10 برس کے دوران ڈیری اور لائف سٹاک سیکٹر میں کیے گئے کامیاب اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ ملاقات کرنے والے وفد میں ابراہیم طارق شفیق، عثمان ظہیر سمیت دیگر نمایاں شخصیات شریک تھیں۔ مشیر وزیر اعلیٰ علی ڈار نے کہا کہ پنجاب حکومت وائٹ ریولوشن کے کامیاب ماڈلز کو صوبائی سطح پر اپنانے پر غور کر رہی ہے، جبکہ لائف سٹاک سیکٹر کی بہتری کے لیے آزمودہ بین الاقوامی طریقوں کو نافذ کرنا ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ویژن کے تحت حکومت مکمل تعاون فراہم کرے گی۔ علی ڈار کے مطابق ڈیری اور لائف سٹاک سیکٹر کی ترقی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے اور مویشیوں کی پیداوار اور صحت بہتر بنانے کے لیے جدید حکمت عملی ترتیب دی جا رہی ہے۔ ملاقات میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کسانوں اور فارمرز کو براہ راست فائدہ پہنچانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ شالامار میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج میں سرجیکل سمپوزیم، وائس چانسلر فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسعود گوندل کی شرکت، وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر محمود ایاز، چیئرمین شالامار ٹرسٹ شاہد حسین، پرنسپل پروفیسر زاہد بشیر بھی شریک، CEO ڈاکٹر عائشہ نعمان، پروفیسر طلعت وسیم، پروفیسر خواجہ عظیم کی بھی شرکت۔ سرجیکل انکالوجی کلینک کا افتتاح کیا گیا۔ شالامار میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج میں 10ویں سرجیکل سمپوزیم کا انعقاد کیا گیا۔ چیئرمین شالامار ٹرسٹ شاہد حسین، پرنسپل شالامار میڈیکل کالج پروفیسر زاہد بشیر، چیف آپریٹنگ آفیسر شالامار ہسپتال ڈاکٹر عائشہ نعمان، ہیڈ آف سرجری شالامار ہسپتال پروفیسر طلعت وسیم، پروفیسر خواجہ عظیم، پروفیسر حماد رانا، پروفیسر اصغر نقی، ڈاکٹر سارہ خالد، ڈاکٹر معاذ الحسن سمیت سرجنز اور طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شالامار ہسپتال میں کینسر کے علاج معالجے کی جدید سہولتوں کے حامل سرجیکل آنکولوجی کلینک کا افتتاح کیا گیا۔ پروفیسر طلعت وسیم نے کہا کہ سمپوزیم کا مقصد آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبوٹک سرجری کی افادیت کو اجاگر کرنا اور نوجوان سرجنز کو جدید تکنیک سے روشناس کروانا ہے۔ ہمارا انسٹیٹیوٹ اس چیز کے ساتھ کمیٹڈ ہے کہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اپنے EMR اور اپنے پروسیسز میں انٹیگریٹ کریں تاکہ پیشنٹ بینیفٹ ہو۔ اسی طرح ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو روبوٹکس ہیں وہ ہماری پریکٹس میں انکارپوریٹ ہوں اور پیشنٹ کو اس کو زیادہ سے زیادہ بینیفٹ ہو۔ ان فیوچر یہ دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ سارے کے سارے میڈیکل کے پروسیس، سرجیکل پروسیسز جو کہ پیشنٹ کیئر کو انوالو کرتے ہیں ان میں یہ امبیڈ کر جائے گی۔ پروفیسر طلعت وسیم نے کہا کہ شالامار ہسپتال میں سرجیکل آنکولوجی کلینک کا قیام عمل میں لایا گیا ہے تاکہ کینسر کے مریضوں کو ایک ہی چھت کے نیچے علاج معالجے کی مکمل سہولت میسر آ سکے۔ ہم اپنے پیشنٹس کے لیے ایک سٹینڈرڈائز ٹریٹمنٹ پرووائڈ کر سکیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کے پیشنٹس جو ہیں ان کو وہ ٹریٹمنٹ پرووائڈ ہو جو کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہے۔ اور ہم نے جو جتنے بھی یہاں پہ کینسر انکولوجی کے مریض ہیں ان کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں with one notion that every patient has to go through an MDT process۔ سمپوزیم میں اظہار خیال کرتے ہوئے طبی ماہرین نے سرجری کے جدید رجحانات پر روشنی ڈالی۔ کیمرامین احسن جاوید کے ساتھ زاہد چودھری، سٹی 42۔ لالی ووڈ کی معروف اداکارہ اور ماڈل نعیمہ بٹ اپنی فلم بھولا دیکھنے کے لیے کیپٹل سینما پہنچ گئیں۔ نعیمہ بٹ کا کہنا ہے کہ عید کے دن جب وہ یہاں فلم دیکھنے آئیں تو شائقین کی جانب سے ملنے والے بے پناہ پیار کو دیکھ کر وہ جذباتی ہو کر رو پڑی تھیں۔ بہت اچھا لگ رہا ہے کہ سیکنڈ ٹائم میں ایسی سینما میں آ رہی ہوں۔ جب ہم پہلے آئے تھے تو عید کے دن تھے تو بہت زیادہ بزی بھی تھا اور مزے کا تھا اور لوگوں نے اتنا پیار دیا تھا کہ میں رو پڑی تھی۔ یہ وہاں سینما ہے جہاں پہ میرے آنسو نہیں رک پائے تھے کیونکہ اتنا پیار، اتنی رسپیکٹ جب مجھے کسی نے کہا کہ آپ نے ہمیں ہمارا سینما واپس دے دیا تو میرے لیے تو بہت آنر کی بات تھی۔ اب دوبارہ یہاں آ کے پھر اچھا لگ رہا ہے۔ میں دیکھ رہی ہوں ابھی بھی لوگ آ رہے تھے۔ ڈائریکٹر صاحب کا میرا ہم نے کافی ڈسکشن کر کے کردار کو بنایا تھا جیسے کرنا ہے۔ اب اس میں جو بریڈز وغیرہ آئیڈیا تھا وہ میرا آئیڈیا تھا، because I wanted to give it a look جو کہ ایک یونیک تھی۔ میں بروکلن میں رہتی ہوں ویسے تو میں چاہ رہی تھی کہ جس کردار میں منفرد سا کوئی چیز ڈالی جائے جو لوگوں کو دکھائی جائے، کوئی نئی چیز ہو۔
ملک ریاض حسین میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں مکس ڈبلز اور مینز ڈبلز کے میچز کا فیصلہ ایس پی سیکیورٹی فیاض حمید نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور نوجوان کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ جمنیزیم ہال نشتر پارک میں اسپورٹس کمپلیکس میں جاری ٹورنامنٹ کے مکس ڈبلز کے میچ میں رانا مقصود اور سمیہ طارق کی جوڑی نے محمد توقیر اور سویرا رفیق کی جوڑی کو 1 کے مقابلے میں 2 سیٹ سے ہرایا۔ دوسرے میچ میں سخی سرور اور محمد صہیب کی جوڑی نے مجتبیٰ چودھری اور محمد راشد کے خلاف کامیابی حاصل کی۔ تیسرے میچ میں مدثر ریاض ملک اور شجاعت علی کی جوڑی نے ملک شبیر اور عمران راٹھور کے خلاف کامیابی حاصل کی۔ چوتھے میچ میں گور نفیس اور سول جج کی جوڑی نے اظہر مغل اور ملک نوید کی جوڑی کو ہرایا۔ لاہور ریجن پی سی بی چیلنج کپ کے میچز ایسٹ زون وائٹ اور ایل آر سی اے بلیوز کے درمیان میچ پہلے روز 12 وکٹیں گر گئیں۔ نیو اتفاق گراؤنڈ میں ایل آر سی بلیوز کی ٹیم ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 246 رنز بنا کر آؤٹ ہوگی۔ عبدالماجد 60، محمد زید 60، علی زویر 27 اور جعفر بلال 24 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ ایسٹ زون وائٹ کے صفی اللہ نے 3 جبکہ اسد علی، عادل شوکت اور عمر اعجاز نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ این سی ریڈ بال کیمپ جاری۔ کیمپ میں کھلاڑیوں نے ٹارگٹ میچ میں حصہ لیا۔ نیشنل کرکٹ اکیڈمی کیمپ میں شریک کھلاڑیوں نے سناریو میچ میں حصہ لیا۔ ایل سی سی اے گراؤنڈ پر ہونے والے میچ میں کوچز نے کھلاڑیوں کو مختلف ٹارگٹس دیے۔ اس میچ کا بنیادی مقصد کھلاڑیوں کی میچ فٹنس کا جائزہ لینا اور میچ کی بدلتی صورتحال کے مطابق خود کو ڈھالنے اہلیت پر بڑھانا ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔